Hi everyone, joining us today is Abhilash Thapriyal. Some of you might know him as Muffler Man, some of you might know him as JD Sahab, and some of you must have seen him on TVF's Aspirants. Abhilash, thank you so much for taking time out to do this with the Quint. थैंक यू दीक्षा। क्विंट का तो हक बनता है हमारे ऊपर ना। The show has been out for a while. You're constantly getting like great responses on social media and otherwise. How does it राइट feel? Like there's so much love that's shown towards you, even in the comment section on YouTube. सो आई when we are creating the character SK, we did not know that SK will get so much of love. It'll be such a relatable character. But Abhilash, how did the show come to you? मतलब कैसे start हुआ ये? Because I'm sure you must be auditioning constantly. And how did you know that this was one project that you should be a part of? I always wanted to be a part of TVF's any story, So that I told Arunab long time back. I'd met him in a party and he was like, I'd done a 30-second cameo in a web series called Inmates. और अर्नब टोल्ड मी कि यार तू बड़ा सही एक्टर है। एक पार्टी में ऐसे रैंडमली वन डे अर्नब कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक कि हम लोग एक वेब सीरीज बना रहे हैं, देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड एसके, 3 लड़कों की कहानी है, सो वुड यू वांट टू ऑडिशन। मैंने कहा मतलब ये सवाल होता है क्या ऐसा पूछने वाला। तो मैं गया, आई मेट अप्पू द डायरेक्टर एंड वी स्टार्टेड स्पीकिंग एंड अप्पू ने बोला यार आप तो कर लोगे। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मतलब प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने कहा कि 3 सीन्स हैं, ये तुम देख लो, इनको प्रिपेयर करके आ जाओ। एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट एसके। एसके वाज completely opposite of what I am. Very subdued, introvert, रिएक्ट नहीं करता है चीजों को लेकर, इम्पल्सिव नहीं है, एंड आई एम एवरीथिंग बट एसके। अप्पू ने कहा ठीक है करते हैं, कौन सा सीन करे। मैंने कहा वो बड़ा वाला एक सीन है, वो जो आपने मेरे को 4 पेजेस का सीन दिया ना, वो कर लेते हैं पहले। सो इट वाज द मोनोलॉग। अच्छा मुझे Oh. कोई आइडिया नहीं है कि ये मोनोलॉग कहाँ पर आने वाला है। ही केम बैक, ही वाज लाइक दीपेश लव्ड इट, दीपेश द राइटर ऑफ द शो, ही लव्ड इट एंड ही सेड यही एसके अपना। और वो मोनोलॉग इज एक्चुअली द मोनोलॉग जिसने बहुत लोगों को हुक भी करा शो में. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट दे फेल्ट लाइक वाचिंग मोर ऑफ दीक्षा द शो. बड़ा प्रेशर था, बड़ा प्रेशर था। तेरे को पता है क्या मुझे क्या बोला गया? मुझे बोला अच्छा, ये ऑडिशन होने के बाद मेरे को बोला ये हम इसलिए इम्पैक्ट की बात कर रहे थे क्योंकि जो शो है ना वो आप ही स्टार्ट करोगे, तो ये 8 मिनट आपके। एज एन एक्टर यू फील empowered, you feel confident, you because you have done whatever you could. Talk to me a bit about how the sequence of events unfolded, because in the process of working on this big project that can be the turning point of your acting career, you lost your dad. I'd gone, I knew it कि मेरे को ऑडिशन करना है। that till that point in time पापा ठीक थे, he was not that sick, um, but then his health started deteriorating and his therapy started. The confirmation came from TVF and we started the reading sessions, the 6-day reading sessions. That's when the therapy started. And I would just take him to the hospital, Dhaula Kuan RNR Army Hospital. वहां पर मैं लेकर जाता था and I would just come back and he would, कीमो के बाद बहुत हालत खराब हो जाती है यार। Yeah. मतलब when you see your father going through it, it's बहुत ऐसा लगता है, you feel helpless and he was like नहीं यार तू वो कर ले, ये सब हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे। और मेरे को एक और चीज लगती है कि वो ये कि वो वॉइड हमेशा रह जाएगा कि पापा को देखना चाहिए था ये। People know you in different shades, as I mentioned earlier. Also, they know you as somebody who comments as Muffler Man on politics. They know you as somebody who makes funny videos as JD Sahab. They know you as an RJ anyway. Is it difficult reintroducing or introducing yourself as an actor? एक मेरी माँ हमेशा बचपन से मुझको कहती थी कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। as soon as you tackle that and accept it कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनिया में लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, once you completely accept it कि यार वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे। every time I do radio I'm called a radio jockey, every time I do a funny project I'm called a comedian. You are something much more than this. Abhilash is or Deeksha is or whoever is watching it, आप लोग बहुत कुछ हो जो आप कर रहे हो। ये सब आप कर रहे हो, ये सब बस आप काम कर रहे हो यार, पैशन के लिए, प्यार के लिए, पैसे के लिए, जिस भी रीजन से। But Abhilash, you always wanted to be an actor. Was that something you always knew? I always wanted to do something. I always wanted to get into army यार। मेरे को तो फौज में जाना था, मेरे को तो ये सब करना ही नहीं था। मैं तो फौजी का बेटा हूँ, मैं तो बचपन से नेशनल डिफेंस एकेडमी
क्रैक करना था। मेरा तो ये कुछ सपना ही नहीं था कभी। मेरे को आज भी कहा जाए सब कुछ छोड़ के तेरे को फौज में ले रहे हैं, मैं चला जाऊंगा। नाउ आई एम लविंग इट एज ए रेडियो जॉकी। यार तू सोच दीक्षा, बात करने और गाने चलाने के पैसे देते हैं भर भर के। कितना अच्छा काम है यार। यू नो, एज एन एक्टर आपको दूसरे के कपड़े पहनाते हैं, दूसरे के डायलॉग्स बोलते हो आप, दूसरा कोई शूट कर रहा होता है और सारा अप्रिसिएशन आपको मिलता है। मैं यहाँ नहीं कर रहा होता, ऐसी बातें मैं कहीं और कर रहा होता, वो पैसे भी नहीं देते और बातें भी करवाते। आई थिंक इफ यू हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं। ना कहने में आप सोचते नहीं हो, टेक केयर ऑफ योर किचन, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए कंफर्टेबल हो जाती हैं। और हमने तो किचन के साथ अपना जो बेडरूम और लिविंग एरिया सबका ध्यान रख रखा है। Years you've been associated with things that you feel for, and one of those things has been that's been thrown at you in the social media circle. Otherwise, it's the fact that people have body shamed you, and told you that you don't look a certain way. And not a lot of people would have thought of it when it comes to a man. you know we don't think that a man can also be body shamed, or maybe a lot of men don't talk openly about it. What made you come out about it and made you want to tell the world that this is also a reality? बारे में तो मुझे खुद बहुत टाइम के बाद पता लगा कि मेरे को जब कोई बोलता है तिल्ली ए सुकड़ू, इट्स स्किनी शेविंग। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था अरे यार पतला हूं तो लोग बोलते हैं। आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम यू आल्सो एक्सेप्ट इट। ये कंडीशनिंग है यार दीक्षा। हम लोग कितनी बार इस चीज को वैसे भी ऑफलाइन भी डिस्कस कर चुके हैं कि अभी भी ग्लास सीलिंग के बारे में लोगों को नहीं पता है, अभी भी सेक्सिस्ट रिमार्क क्या होते हैं लोगों को नहीं पता है, अभी भी बोला जाता है कि आप फेमिनिस्ट हो। अच्छा हम तो नहीं है जी, हम तो बिल्कुल। अरे मतलब तुम फेमिनिज्म को समझ ही नहीं पाए हो, तुम्हें यही नहीं पता। फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आप कैसे कह सकते हो कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ नहीं हो? Right. किसी भी एड में जब हम देखते हैं कि कोई लड़की अपने ऊपर चॉकलेट गिरा रही है और मैंगो जूस गिरा रही है, तो हमें बड़ा नॉर्मल लगता है कि अरे ओहो बंदी देखी तूने। और ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा ऐसा प्योर एंड पायस हूँ, आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम गैंग। तो जब मैंने वो पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू किया और व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट रिवर्स ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि हम लोग जैसे आप लड़के को देखते हो थोड़ा भी सिड्यूसिंग पोजेस में, तो आप बोलते हैं अबे क्या है ये, मीठा है क्या, अबे हलवा है क्या, अबे हिजड़ा, अबे छक्का, अबे गे। These were the comments which were coming, and these were the messages I was getting, and I realized how do we think यार। मतलब ये है अभी भी सच्चाई। ऐसी चीज जो उसके कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो उसका कलर हो, चाहे वो उसकी हाइट हो, टॉल शॉर्ट फैट स्किनी, ये सब चीजें जिसके बारे में यू शुड नेवर कमेंट। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो अब हमें भी समझ में आ रही है और हम लोग चाह रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं अगर अब तक आप ये करते थे। एंटिसिपेशन था इसका कि इस तरह के कमेंट्स आएंगे? क्या आपको पता था? Of course, Deeksha, when you see it, when you have you have seen your friends talking about it, people who know you talking about it like that, obviously strangers will react like that. I mean, this was a bold step. When you disrupt the society, when you disrupt the system, when you disrupt things which are thought to be normal, people will get uncomfortable. And how will they react? They'll react with their comments. They'll react with anger. So it's normal. But that everything question every damn norm. But why even reverse objectification? I mean, we've seen women, as you said, समंदर से निकलती हुई खूबसूरत लड़की, और हमने अब हम क्वेश्चन करते हैं उसको भी कि ये हम क्यों इस तरह दिखा रहे हैं, और हम मेल गेज के लिए क्यों इस तरह शूट करते हैं। फोटो शूट हो गया या फिल्म में भी जिस तरह शूट करता है, उन चीजों के भी डिस्कशंस हो रहे हैं. सो व्हाई डिड यू चूज टू बी एट द सेंटर ऑफ इट एज अ मैन? लाइक what went and what was the idea that you wanted to achieve? यार because I represent majority. मैं तो मतलब इस देश का सबसे ज्यादा सिक्योर बंदा हूँ. मेल, ब्राह्मण, हिंदू, इससे ज्यादा कमाल का सिक्योर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. इफ आई डोंट क्वेश्चन द सोसाइटी, हु विल? एंड ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई लड़की पानी से निकल रही है तो वो गलत है. वो बिल्कुल गलत नहीं है. अगर वो अपनी खुशी से पानी से निकलना चाहती है, whatever she wants to wear, however she wants to get dressed, it's perfectly fine. I'm not questioning that. I'm questioning the intent. I'm saying आप अगर वही आई कैंडी बनाने के लिए कर रहे हो तो यानी कि आपका इंटेंट गलत है यार. Seen social media evolve over the years. You've been on it for Right. years. You've probably seen how even conversations have changed. Did you ever feel that you have to censor what you're saying? And especially now, the kind of conversations that we're seeing on Twitter or even on Instagram,
Have you ever had to pull down a video because you said something? Or now when you do something, do you ever think the repercussions of what you're saying might be? Now I'm more cautious. Yes, I'm more cautious. I say things very openly, but I'm also cautious of the repercussions, as you said. I did pull down one video, which a lot of people thought is an offensive video, though I did not feel so. But मेरे दोस्तों ने कहा यार क्यों इतना hate ले रहा है यार, वो क्या है ना, दीक्षा, वो दिमाग को अफेक्ट करना शुरू कर देता है एक टाइम के बाद. सो यू हैव टू टेक दैट कॉल कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, योर पीस ऑफ माइंड और द पोस्ट. क्या वीडियो सो था ये? यार ये एक फिल्टर था, जो फिल्टर ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर है, और उस पर को मैंने सिर्फ डब किया था, और उस डब में मैंने कुछ भी मतलब ऑफेंसिव नहीं कहा था. बट वो फिल्टर जिसने बनाया था उसको किसी ने कुछ नहीं कहा. वो फिल्टर अभी भी है इंस्टाग्राम पर, और उसको लेकर काफी काफी नाटक हो गया था. तो मुझे लगा कि, और वो एक एक कम्युनिटी के लिए था. मुझे ये भी लगता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, वो सबसे पहले हिल जाते हैं. मतलब रिलीजन जो बताता है हमको कि यार ट्रस्ट, बिलीव, पावर, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, मतलब ये सब कुछ हमें रिलीजन से ही पता लगता है, कहानियों से पता लगता है, और रिलीजन सबसे पहले अफेंड हो जाता है. हाँ, मैं बोलते हुए कॉशियस रहता हूँ अब. तो मैं जो सोशल मीडिया पर बोल रहा हूँ उसको लेकर थोड़ा कॉशियस रहता हूँ. And everyone has to be, as you said, it's evolving and we need to also change a lot of things which I said in the past. I think शायद मैं अब नहीं बोलता. Abhilash, thank you so much for this chat.